Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कितनी गुनाह कब आएगी अल्लाह। मेरे हान मेरा तलाक हो चुका है 2019 में जी। मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरी शादी हुई यहाँ कश्मीर में। 1 साल के बाद मुझे अबू की डेथ का, मुझे 3 दिन के बाद मैंने सुना कि ऐसे तुम्हारे अबू की डेथ हो गई है। कैसी तबीयत है अब मम्मा की? मेरी मम्मा बहुत बीमार है। Emotions ran high when Misbah met with Gulnaz at Langate in North Kashmir's Kupwara district, 100 kilometers from Srinagar. They hugged tightly and wept bitterly. Misbah consoled Gulnaz when she shared the sad news of her mother's illness in Pakistan. The two women from POK are living in Kashmir for more than a decade. Common adversity brought them closer and they became the best of the friends. Gulnaz is a mother of 2 and Misbah has a 7-year-old son. Away from their homes and their country, whenever they meet, they often talk about their past life and long for a day when they would get reunited with their families in POK. Gulnaz wants to go home to meet her ailing mother, but rules don't permit her to do that. Every day she makes video calls to her family in POK, hoping that one day she would meet them in person. फोन किया, उन्होंने कहा मम्मा ठीक है। मैंने कहा मम्मा नहीं ठीक है, उसको सब बात कराओ। उन्होंने नहीं कराया, मुझे बात एडमिट थी मेरी मम्मा 2-3 दिन। फिर घर लाया उसको, सिर्फ यही कहती मेरी बेटी कब आएगी वापस, मेरी बेटी। चलो मेरे अरमान में बेटी है, उसको कोई सर कहती मेरी गुलनाज कब आएगी। मेरे बच्चों के लिए तरस रही है मेरी माँ। मेरा बाप इसी तरह गुजर गया है, उसको 2 साल हो गए, वो भी तरस रहा था। जब कॉल करता था कब आओगी, बच्चे कब आएंगे, हमें किस गुनाह की सजा मिलती है, हमने कौन सा गुनाह किया है। मैं भी गुनाह हूँ। The Jammu and Kashmir government, led by Chief Minister Umar Abdullah, announced an amnesty policy in 2010 for those who crossed the border for arms training to Pakistan between 1989 and 2009. Under the amnesty scheme, former militants could return to Kashmir and be united with their families. Four entry points were approved, including the Wagah border and the Indira Gandhi International Airport, Delhi, for returning militants with their wives and children who had shunned the path of violence. However, most avoided those routes and instead chose to come from Nepal. In 2017, the Jammu and Kashmir government said 377 militants and 864 dependents returned to India under the scheme. However, none had used the designated routes. Misbah was among those who came to India from POK with her husband. She never thought this would be a permanent displacement. All her efforts to pay a visit to her family in POK since then have borne no results. A frustrated Misbah now says she is feeling encaged in Kashmir.
She says the rehabilitation policy wasn't thought through, leaving women like her hopeless and unsure about their future. मैंने एक्स मिलिटेंट से शादी की थी, उसके बाद हम एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के थ्रू कश्मीर में आए हैं। हम लोग 370 प्लस लेडीज़ हैं यहाँ पे पाकिस्तानी। हम कई सालों से, कुछ लोगों को 10 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों को 15 साल हो चुके हैं, हम कश्मीर में रह रहे हैं बग़ैर किसी सिटीज़नशिप के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के। हम ऐसे ही रह रहे हैं। ना तो यहाँ की गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट कर रही है, ना हमें वापस जाने दे रही है। उसके बारे में हम बयान नहीं कर सकती मैं वो स्ट्रगल जो मैंने यहाँ देखा है, जो मैंने यहाँ फेस किया है। यहाँ के लोग डरते हैं हमें जॉब देने से, हमारे साथ कांटेक्ट रखने में, कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं तो वो हमें बोलते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर लो। अगर हम यहाँ पे जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड एक किसी की शॉप पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें ये बोला जा सकता है कि हम तो आपको जॉब दे देते, लेकिन आप पाकिस्तानी हो, कल आपकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी लाइफ बहुत मुश्किलों में गुजर रही है। और सबसे बड़ी मुश्किल हमारी ये है कि हम अपने घर, अपनी फैमिली, अपने कंट्री से दूर हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं अपनी ज़ात का कहूँ तो मैं ये कहती हूँ कि हमने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, अपने हाथों से बर्बाद कर दी। हम इंडियन गवर्नमेंट के गलत जहाँ से में आए कि इन्होंने हमें हमने तो ये सोचा था कि इतनी बड़ी पॉलिसी ऐसे अनाउंस हुई है, पार्लियामेंट में बैठ के एक बंदा ऐलान कर रहा है, तो उस बंदे की कहने का कोई मतलब और मकसद होगा। हम तो आ गए गलती से, अब हम इनको कुछ भी नहीं बोल रहे सिवाय इसके कि हमें वापस भेजो। Many Kashmiri men had crossed the LOC into POK in the 90s to get arms training after militancy erupted. Some married there after giving up violence. The Pakistani wives of former militants who returned to Kashmir after the announcement of amnesty policy in 2010 have been demanding that they must be deported or given the Indian citizenship. They have appealed the human rights organizations to intervene. Sociologists say settling in a new culture with no hope of returning to the country of origin and meeting with families puts a lot of pressure on such women, leading to hopelessness and depression. ऑलवेज इट्स इन आवर माइंड कि हम लोग का घर तो कोई नहीं रह जाता है, मायका और ससुराल। जब हमें लगता है कि जहाँ के हम हैं, जहाँ के हमारे रूट्स हैं, तो वहाँ हम दोबारा नहीं जा सकते हैं। तो इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। अल्टीमेटली वन नीड्स हैप्पीनेस। तो अगर ये लेडी, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल फ्रेम आपका कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे है, इमोशनल कंट्रोल कितना आप पे है। अगर ये लेडी ने अपने आप को, या ये जो फीमेल है, अगर इसने अपने आप को बहुत ही अच्छे से समझा है कि नहीं, आई हैव टू लिव, आई हैव टू एकोमोडेट in this environment, in new environment, slowly and gradually हम लोगों को, मतलब me being a female, मैं अपने हिसाब से भी ये कह सकती हूँ, and then being a sociologist I can understand the social fabric of our Kashmiri society and other societies। तो उसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, चलो ठीक है, हम लोगों ने तो अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, तो हम लोग फिट हैं। मे बी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट विल वेरी, किसी पे कम इम्पैक्ट होगा साइकोलॉजिकल, या हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट कम होगा, तो किसी पे ज़्यादा होगा। तो मोस्टली ये होता है कि अगर आप, इफ़ यू हैव किड्स, यू हैव चिल्ड्रन, तो वो फिर उन्हीं में बिजी रहती हैं। देन शी ट्राइज टू फॉरगेट, बट एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस आर इमोशंस। आप कितना भी उनको पूरा, आप उनको अपने जो ट्रेडिशंस या आपके चाइल्डहुड मेमोरीज, वो तो आपको याद करते ही हैं, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को तो याद तो करते ही हैं। वो कहते हैं, वो माँ बाप, बहन भाई, वो उसका कहते हैं कि आप आ जाओ वापस। हम भी कह रहे हैं मुस्तकबिल नहीं है यहाँ पे, तो आज तो जो यहाँ पे रहते हैं उनका मुस्तकबिल नहीं है ठीक। तो वो बेचारे सुबह जाते हैं, भरोसा है कि शाम को आएंगे, नहीं तो हमारा तो बिल्कुल ही नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते। वो कहाँ जाएंगे? जब कुछ हम लोगों को कहते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे नहीं हो ज़बरदस्ती, जब हम लोगों को नहीं पूछते, हमारे बच्चों को भी यही करेंगे। हम लोग तो सेफ़ है ही नहीं किसी जगह पे, हम जाएँ बाहर जाएँ कहीं, तो हमें तो कुछ भी नहीं कहते। आप लोग कौन हो, क्या हो, शनाख्त क्या आप लोगों की?
At Baramulla, 50 kilometers from Srinagar, Naureen can't take off her eyes from the photographs of her family in POK. 5 of her relatives have died in the last 5 years, but she couldn't attend their last rites. The pain of separation from her loved ones has impacted her health. She is weak and often suffers from bouts of depression. Her husband had to undergo multiple surgeries. Frequent calls to police stations and living under a constant scanner have taken a heavy toll on his health as well. मेरे अब्बू की भी ख्वाहिश थी यही कि वो भी जिस टाइम पे मैं यहाँ पे आई वो भी बीमार थे, वो भी मुझे कहते थे कि तब तक मत जाओ, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो मैं गुज़र जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें बेटी की नज़र से नहीं देखता, मैं तुम्हें बेटे की नज़र से देखता हूँ, तो मैं गुज़र जाऊँ और मेरी कब्र पे मट्टी डालना और फिर जहाँ मर्ज़ी जाओ, तुम जा सकती हो, तो मैं तुम्हें देखने वाला नहीं होऊंगा। फिर मैंने उनकी बात को भी ठोका, मैंने कहा नहीं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है सामने, हमें जाना है इनका मुस्तकबिल बनाने के लिए। मैंने उनकी बात को भी ठुकराया, मैं यहाँ पे आई, फिर मैं 1 साल मुझे यहाँ पे हुआ। 1 साल के बाद मुझे अब्बू की डेथ का, मुझे 3 दिन के बाद मैंने सुना कि ऐसे तुम्हारे अब्बू की डेथ हो गई है। फिर उस वक्त भी मेरे ऊपर जैसे क़यामत टूट पड़ी। फिर मुझे पिछली सारी बातें याद आ रही थी कि देखो मेरे बाप का क्या क्या सपना था, मैं उसके पास नहीं थी। बहुत दुख हुआ हद से ज़्यादा। 3 दिन के बाद फिर मुझे पता चला। फिर उसके बीच में 3 साल गुजरे। 3 साल के बाद फिर मेरी बहन गुजर गई। फिर वो भी थोड़ी बीमार थी, उसको टाइफाइड का बुखार हुआ, तो पता नहीं चला वो भी कैसे गुजर गई। फिर वो गुजर गई, फिर उसका भी मुझे 3 दिन के बाद पता चला। फिर मैं क्या कर सकती थी, फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए बस थोड़ी बहुत दुआ वगैरह करवाई और कुछ नहीं। फिर वो गुजर गई। फिर उसके बाद बीच में 2 के 3 साल गुजर गए। ये 2016 में मेरे भाई गुजर गए। फिर उसका भी पता नहीं चला कैसे वो गुजर गया, मगर फिर वो गुजर गया। अब ये हो गए 20 से 25 दिन हो गए हैं, मेरी वालदा गुजर गई। इसको भी मैं नहीं देख पाई, ना मैं उनको देख पाई। वो तो पहले उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैं उनको नहीं देख पाई थी। वो मुझे 2-2, 3-3 दिन के बाद पता चलती थी उनके बारे में। मैं बड़िया बचपन दियां यारियां याद दिलवानियां ने। अस्सलाम वालेकुम। मैं बचपन दी सहेली हो, तुसी हुण बुढ़ापे दी सहेली बन गए हो। मामी मामू की थैन। Bushra Farooq from Bagh district in POK married Altaf Ahmed after he crossed to POK for arms training. There he rejected the idea of violence and settled with Bushra, but was always homesick. 2 decades later, taking benefit of the 2010 rehabilitation scheme, Bushra with her husband and 2 children came to India through Nepal and settled in Kupwara. Life was smooth until Bushra insisted for returning to POK to meet her relatives, but she was denied travel documents and there was no hope for her of getting the Indian citizenship. This ultimately became the reason for their divorce in 2019. She didn't tell it to her family back in POK, but they eventually got to know about it through social media. Her husband also took the custody of her 2 children, abandoning her in a place where she had no relatives or friends. She rented a 1-room apartment and began working as a tailor at a boutique in Kupwara. She says an FIR was filed against her under Foreigners Act. She still hopes that the 2 countries will take a humane view of the predicament women like her are facing. वो लाइफ जो थी इसमें ये था कि एक इंसान को ये सहारा था कि चलो कोई तो है जिसके मतलब मैं उसकी छत के नीचे मैं हूँ, एक मतलब इंसान अपने आप को सेफ महसूस करता था। लेकिन जब से डिवोर्स हुई है तब से बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि अपनी खुद की कफ़ालत करना, ये फिर बच्चों की कफ़ालत करना, क्योंकि बच्चे 2 साल से मेरे ही पास थे, अब कुछ ही टाइम हुआ है जब से वो उनको वापस ले गया, तो बहुत मुश्किलात आई, बहुत ज़्यादा ये हुआ। लेकिन ये था कि अपने हाथ में हुनर था तो कोई ऐसा वो हुआ नहीं। मतलब ये बहुत मुश्किल वक्त है,
देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल वक्त है, मतलब शोहर के बगैर रहना या बच्चों के बगैर रहना। चलें, होता है, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मामलात होते रहते हैं, दुनिया में ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ऐसे अकेले ज़िंदगी बसर करना ये बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए, और ख़ास तौर पे वो भी दूसरे मुल्क में, मतलब परदेश में रहना, अपने माँ बाप के बगैर, अपने बहन भाइयों के बगैर बहुत मुश्किल होता है ये ज़िंदगी बसर करना, क्योंकि 10 लोगों की 10 नज़रें होती हैं। अच्छे लोग आपको अच्छी नज़र से देखते हैं, बुरे लोग आपको बुरी नज़र से देखते हैं, तो फिर हर इंसान को फेस करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होती है ये ज़िंदगी बसर करना। Before the 2010 amnesty scheme, 2 surrender policies had already been announced. The surrender policy in 1995 entailed monetary incentives to surrendered militants, including 1.5 lakh rupees as fixed deposit, monthly stipend, and vocational training. 2,200 militants surrendered. A rehabilitation policy in 2004 promised surrendered militants, besides 1.5 lakh fixed deposit, a monthly stipend of 2,000 rupees. More than 400 surrendered militants availed the benefit of this policy. Saira Javed runs a boutique in Kupwara. Bushra and 3 other POK women worked there. Before the amnesty scheme was announced, she came with her husband and 2 daughters to India in 2007 through Wagah border on valid travel documents that granted her permission only to go to New Delhi. But she says after her arrival in India, her in-laws took away her passport and tore it up, ending any possibility of her going back to POK with her husband and children. In 2007, police filed an FIR against the couple under Foreigners Act for entering into any area of India which is restricted for entry. She was sent to Central Jail in Srinagar with her 2 children for 3.5 months, while her husband was sent to Central Jail for 6 months. Saira says the court ruled that her husband was a citizen of India and said, based on that, citizenship should be granted to her also. But despite the judgment, she never got the travel documents. जब ये आर्टिकल था तो हम लोगों के लिए बहुत सारी सहूलतें थी कि हम जो है वो अपने आप को सेफ समझते थे, और हम जब प्रोटेस्ट करते थे तो इतना कुछ नहीं होता था। जब से ये आर्टिकल टूटा है तब से हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। हमें जो है वो आए दिन सारी एजेंसीज़ जो है वो अपने दफ्तरों में बुलाते हैं, पूछते हैं। पिछली दफ़ा जब यहाँ बारामूला में प्रोटेस्ट किया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं जा सकी। फिर भी मुझे एसएसपी ने, डीएसपी ने बुलवाया और मुझे धमकाया, डराया कि आप जी अब ये नहीं चलेगा, अब हालात वो नहीं रहे हैं, तो आप जो है वो प्रोटेस्ट मत कीजिएगा, आप ये कदम मत उठाइएगा कोई भी। देखिए अब हमारी आवाज़ कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। हम सियासत के दौरान में नहीं पिसना चाहते, हम यही चाहते हैं कि इंसानी हुकूक के तौर पे जो है वो एक इंसान होने के नाते तो हम लोगों पे जो है वो रहम किया जाए, हमारे बच्चों पे जो है वो ये एहसान किया जाए कि आप हमें अपने मुल्क वापस भेज दें। India says Jammu and Kashmir, including area under Pakistani occupation, is its territory. But women from POK are not entitled to Indian citizenship. The Citizenship Amendment Act 2019, which paves way to Indian citizenship to non-Muslim persecuted minorities from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh, also has nothing to offer these women who have married Indian citizens. Nusrat Begum from Athmukam in POK came to Kashmir through Nepal with her husband and 2 children in 2008. Her husband told her that they would return, but she says after their arrival, he tore the travel documents, ending all chances for her return. The couple divorced in 2020. She now also works at Saira's boutique. The 30-year-old has been singularly bringing up her children. Her wish is to one day go back to POK to be with her family, who she says are also desperate to get reunited with her.
The separation has taken a heavy toll on the family. Her father died and her brother went missing. She says the government must initiate steps to send back women like her to POK. इधर मैं पार्लर का काम भी करती हूँ, टेलर का काम भी करती हूँ। जाहिर है बच्चे छोटे छोटे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना बच्चों के लिए। जाहिर है उसने बच्चे छोड़ दिए, मैं तो नहीं छोड़ सकती ना बच्चों को। तो दूसरा, हम एक दूसरे के साथ सायराबाजी बहुत तलबकारी है हमारी, हर किस्म का दामनकारी है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। इसलिए बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम क्या कर आगे अभी तो कुछ नहीं नज़र आ रहा उनको, तो हम ऐसे सोच रहे एक बड़ी परेशानी से गुजरे। वो सुबह में शॉप पे आती हूँ, अकेली घर पे होती हैं मेरी बच्ची, स्कूल जाती हैं वापस आती हैं, घर पे अकेली होती। जाहिर है कोई पर देखने पालने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ पे ऐसा माहौल है, यहाँ पे रहना एक जिसके माँ बाप दोनों होते हैं वो बच्चों को भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी तो अकेली बच्ची है, उनका रहना तो बहुत मुश्किल है। हमारी भी कोई पहचान नहीं, हमारे बच्चों को भी कोई पहचान नहीं है। इसलिए यहाँ पे जो हालात के बारे में दिन प दिन हालात ख़राब ही होते जाते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल होती जाती है। हमारे बच्चों के लिए ख़ास करके बहुत मुश्किल होती जाती है। हमारे बच्चे बहुत मुश्किल का सामना करते हैं। क्या मुश्किल का सामना? मुश्किल हो रही है बच्चों के लिए, ना उनको कोई इज्जत के डॉक्यूमेंट्स है, ना उनके पास कुछ नहीं है। पढ़ाई है, दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, ना दूसरे मुल्क में जा सकते हैं, कुछ नहीं। अब क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए। In 2020, Somia Sadaf and Shazia Aslam from POK contested the District Development Council elections from Drangmula in Kupwara district and Hajin in Bandipur district. Although they were permitted to contest the elections and run their campaigns, administration later said complaints were received about their citizenship. While most women from POK are living in a state of uncertainty in Kashmir, Saira Bhatt from Bandipur district reportedly took the extreme step of ending her life by self-immolation in 2014. डिवोर्स इज़ अ बिग इशू इफ़ यू सी। अगर वो लेडी जैसे जो उस फैमिली में थी, उस हस्बैंड एब्यूजिव मैरिज जिसको हम कहते हैं, जहाँ वो खुश नहीं थी, जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं थी, अगर वो खुद से ही निकलना चाहती है उस मैरिज बॉन्ड से, तो देन इट वुड बी बेटर फॉर हर। इसमें कोई ये नहीं है उसका। तो मे बी अगर हाँ अनलेस एंड अनटिल शी वुड बी she will be employed या she will be financially sound, उसमें अगर उस पैटर्न पे वो अगर नहीं है तो उसको वो रहना चाहती थी मैरिज में, हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। इन वन वे या द अदर वे उसको डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गई हस्बैंड से, फैमिली से, अब बच्चों के साथ वो अकेले हैं। तो देन तो impact of psychological disorder, or you can say that self-esteem is huge. she would be ruined altogether. अगर अब उसके पास financial help है, अगर वो working है या कुछ है, तो then she can somehow manage herself. And if it was an abusive marriage, then she won't go for suicide. If it was a normal marriage where she wants to be with her husband, अगर उसको ये है कि you are from outside Kashmir और आप यहाँ अब हम आपको accept नहीं कर रहे हैं, she was good with her husband, तो अगर उस हिसाब से अगर आप कहेंगे, ये situation होता है कि आपको कौन सी social situation है, अगर उस वक्त वो सोशल सिचुएशन थी कि नहीं, आपको ज़बरदस्ती उसके साथ अलग किया गया है, या मे बी शी कैन एंड शी इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड, शी वुड बी थिंकिंग दैट व्हाट विल आई डू विद माई चिल्ड्रन, विद माई लाइफ, वेयर आई एम सपोज टू गो आफ्टर, बिकॉज आई हैव नो फैमिली टू गो बैक। तो तब तो ऑब्वियसली सुसाइडल टेंडेंसीज वुड बी देयर।
They left behind everything in the hope of starting a new life in Kashmir, but the optimism was rather short-lived. Soon they realized they're on their own and there's nobody to come to their rescue. All that the women from POK and Pakistan want, please take a humane view and resolve the issue in the right earnest so that their difficulties can also come to an end. That's all we have in today's show. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.